morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, let's start today's class. What we have completed yesterday? Post-operative Okay, post-operative management. In that specific pain management. pain management. After that, what we have completed? Post-operative Yes, post-operative complications. Which complications we have studied? Pneumonia, anaphylactic, hypoxemia, hypoxemia, pulmonary embolism. pulmonary embolism. Okay, so pain management. What key points you have to remember in pain management? Process for any medication which is received by client in pre-operative period or anesthetic use. Yes, we have to assess which anesthesia a patient has received, whether any medication patient has received in preoperative phase. Then Monitor objective data of pain. monitor objective data for the pain related to pain, such as facial expressions, body gestures, tachycardia, tachypnea, hypertension, restlessness, or moaning or crying. Then PCA pump, how to use. yes, we have to ensure. We have already taught the client how to use the PCA pump, but in post-operative period, we have to ensure that patient understood the teaching. In pre-operative client teaching, we have make the client understood how to use it. Now the client is confused after surgery. It may happen that client forgot how to use the PCA pump. So before initiating the PCA pump, we have to ensure that client has a knowledge how to use the PCA pump. Then, If OPER has been prescribed, measure vitals and every 30 minutes. okay, yes. If we are giving opioids, so we have to measure. We have to check the vitals in that specifically respiratory rate and the pain level also, because opioids will relieve the pain. If after 30 minutes still the pain is not relieved by the opioids, it indicates something is problematic. So we have to assess the client every 30 minutes. We have to check for the effectiveness of opioids, that is pain level and respiratory rate. Then one main thing. Culture, spiritual. Yes, that is so important point. We have to always consider clients' cultural and spiritual beliefs before giving pain medications or pain management. But before giving any pain management, what is the first step of the Use nurse? non-invasive measure. नॉन इन्वेंसिव जो है यूज करवानी पड़े. Okay, non-invasive measures you will do. But what is the first step of nursing process? Assessment. Assessment of the first pain. to do assessment. Yes, you have to assess the pain. How much pain is experienced by the client? You can assess the pain by using Pain scale. Pain. Scale. Pain so there is scale. 1 to 10 rating scale, but patient does not understand how to rate my pain. So you can use Facial. डिस्क्रिप्टिव. descriptive pain scale. Yes, descriptive pain scale में क्या होगा? There is no pain, mild pain, moderate pain और severe pain. अगर patient मतलब pediatric है और patient description भी नहीं दे पा रहा है, then we can use ऑब्जेक्टिव. faces scale. हाँ, फेस के. Yes, faces scale for the pain. So हम ये use करते हैं. First of all, we have to do the assessment. Assessment के बाद intervention करोगे. Intervention में पहले क्या करोगे? Non-pharmacological. Non-pharmacological methods, yes, and then pharmacological. So this is the sequence. You have to remember the sequence. First and foremost step. आपको एग्जाम में कभी भी हमने ये प्रायोरिटाइजेशन में ऑलरेडी स्टडी किया था कि whenever there is a priority और ऑप्शंस में ऐसे इंटरवेंशंस दिए गए हो तो पहला स्टेप हमारा असेसमेंट ही होगा. असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट.
कौन सी सिचुएशंस में असेसमेंट नहीं आएगा और इंटरवेंशन फर्स्ट आएगा? Emergency life In threatening. emergency situation, in life threatening situation, we cannot do the assessment first. It is the only exceptional case जहां पर assessment is not our priority. Other than that, in every condition, assessment is our priority. So you have to remember, ये prioritization के concept आपको याद रखने हैं. Okay. Then we have seen complications of the surgery. Sorry. So first complication, that is pneumonia and atelectasis. What is pneumonia? Fluid accumulation. Inflammation of alveoli. Inflammation of the alveoli. And pneumonia कब होगा? सर्जरी के बाद? After 2 days. Yes, it may develop. It takes 3 to 5 days to develop. Inflammation होने में 3 to 5 days लगेंगे. और why it happens? Due to immobility, aspiration, and infection. Yes, अगर aseptic जो instruments यूज किए थे वो sterile नहीं थे, तो infection की वजह से हो सकता है, या फिर क्लाइंट ने कुछ एस्पिरेट कर लिया है ड्यूरिंग सर्जरी, इसलिए तो एनबीएम करवाते हैं, बट स्टिल क्लाइंट ने कुछ लिया था और एस्पिरेट हो गया तो न्यूमोनिया हो सकता है. और सर्जरी के वक्त लंग्स है वो इमोबाइल हो जाते हैं बिकॉज सब कुछ वेंटिलेटर से हो रहा है, तो इमोबिलिटी इन्फेक्शन और एस्पिरेशन की वजह से होता है. व्हाट इज एटिलेक्टेसिस? एटिलेक्टेसिस मींस Collapse of the Collapse lung. lungs. यस, कोलैप्स लंग्स और एल्वियोलाइज. वो कितने दिन में डेवलप हो जाएगा? 1 to 2 1 to days 2 after days. surgery. सर्जरी के 1 या 2 दिन के बाद अगर एटिलेक्टेसिस होना है तो हो जाएगा. क्यों होता है एटिलेक्टेसिस? Secretion obstruct है जैसा. Yes, Mucus on secretion. jam. Stock create म्यूकस. लगा. यस, म्यूकस वहां पर स्टक हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा. व्हाट आर द अदर रीजंस? वो म्यूकस हम निकाल सकते हैं इफ द पेशेंट डू सर्टेन थिंग्स. Deep breathing Deep exercise. breathing, coughing Coughing exercise. exercise. यस, पेशेंट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करेगा सर्जरी के बाद, तो श्योरली पेशेंट विल डेवलप एटिलेक्टेसिस. पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन नहीं करवाया जाएगा तो भी हो जाएगा. अगर पेशेंट अर्ली एम्बुलेशन नहीं कर सकता है, सर्जन ने बोला है कि पेशेंट को बेड से नहीं निकलना है, सो वी कैन डू द डीप ब्रीथिंग, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ये सब एक्सरसाइज तो करवा सकते हैं टू प्रिवेंट द एटिलेक्टेसिस. व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को एटिलेक्टेसिस हुआ है? Dyspnea. डिस्निया, Crackle. क्रैकल्स. यस, जो भी लोब अफेक्टेड होगा वो वहां पर क्रैकल्स होगी. Tachypnea. टैकिपनिया, यस. Hypothermia. हाइपरथर्मिया, यस, बिकॉज जो न्यूमोनिया है दैट इज इन्फ्लामेशन. Cough and chest Chest pain. pain. चेस्ट पेन होगा, यस. प्रोडक्टिव कफ होगा ड्यू टू म्यूकस एक्यूमुलेशन. व्हाट इंटरवेंशंस यू विल डू? आपको पता चल गया कि पेशेंट को एटिलेक्टेसिस है. नाउ व्हाट यू विल डू? फर्स्ट स्टेप इज Assessment. always assessment. You have to first assess, then Deep breathing and coughing Position change exercise. कराओ. deep Change. breathing, coughing exercise, incentive spirometry we will do. Then Chest physiotherapy. chest physiotherapy, postural drainage, Early Suction. ambulation. early ambulation, yes. Suction. Suctioning, if patient is not able to clear the secretions or mucus, we can use suction. We can suction the secretions. Then increase fluid intake. Yes, cough ने thin करवा માટે. Yes, we can reposition the client every 1 to 2 hours. फिर नैप दे सकते हैं हम. Yes. Yes, we can give the nebulization. वो आपने देखा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नैप देते हैं NH3% का टू लिक्विफाई द सिक्रीशंस, तो नैप दे सकते हैं. म्यूकोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं, so उससे सिक्रीशंस सीन हो जाएंगे. सो इट इज नॉट कि जितना इंटरवेंशन इसमें दिया है दैट इज लिमिटेड टू दैट. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बूस्ट योर क्लिनिकल जजमेंट कि हाँ
हमें प्रैक्टिकल बेस पर ही थिंक करना है कि ऐसा हुआ है तो मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ. देयर इज नथिंग लाइक दैट वी कैन नॉट गिव नेबुलाइजेशन, वी कैन नॉट गिव म्यूकोलाइटिक ड्रग्स. यस, इट विल रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन बट वी नो कि इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट. सो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कुछ भी नहीं करोगे बट यू शुड नो कि ये आप कर सकते हो. देन हाइपोक्सेमिया, व्हाट इज दैट? oxygen in blood. डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड. क्यों होता है? Due to anesthesia, ड्यू टू एनेस्थेशिया. एनेस्थेशिया के बाद पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, सो नॉर्मल O2 ले ही नहीं पा रहा है, पेशेंट शैलो ब्रीथ्स कर रहा है, तो इसकी वजह से हाइपोक्सेमिया हो गया. हाउ यू कैन असेस कि पेशेंट को हाइपोक्सेमिया है? dyspnea, Restlessness, यस, tachycardia, डायफोरेसिस, डायफोरेसिस, टेकिकार्डिया, hypertension, हाइपरटेंशन, sinus, साइनोसिस हो जाएगा. बिकॉज ब्लड में ही कम है तो टिश्यू में भी कम हो जाएगा. हाइपोक्सेमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा. low Then SpO2 SpO2 भी, low. SpO2 reading will be also low because blood में ही नहीं है, तो SpO2 भी कम आएगा. अभी आपको पता चल गया है कि पेशेंट को हाइपोक्सेमिया है, तो आप क्या करोगे? monitor the sign. Monitor. First of all, we will assess the sign and symptoms of hypoxemia. That is monitoring. Then हमें पता चल गया, we have to notify the PHCP. अभी आपको पता है कि एक ही रीजन की वजह से हुआ है कि पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पा रहा है. सो हमारे स्टेप्स, इंटरवेंशंस कैसे होंगे? एनी Auto supply. यस, O2 थेरेपी, we have to provide oxygen to the patient. So आप O2 थेरेपी दे सकते हो, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग एक्सरसाइज, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवा सकते हो. इसमें भी अगर पेशेंट को म्यूकस अगर बहुत ही अक्यूमुलेट हो गया और पेशेंट उसकी वजह से ब्रीथ नहीं कर पा रहा, यू हैव टू सी द सिनेरियो. उसमें कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि म्यूकस, पेशेंट को बहुत ही कफ है, प्रोडक्टिव कफ है. सो प्रोडक्टिव कफ वर्ड से ही हमें पता चलना चाहिए कि देयर इज अ एक्सेसिव म्यूकस, तो उसकी वजह से भी पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा. सो ऐसे टाइम पर हम नैब और म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं. बट इफ देयर इज नो प्रोडक्टिव कफ नहीं है, अदर रीजंस की वजह से पेशेंट नहीं इनहेल कर पा रहा है, so there is no need to give nab or mucolytis. Understood my point? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Suction भी कर शकाय. हाँ, सक्शन भी कर શકીએ. yes, we can do the suctioning also. पहले लीस्ट इन्वेजिव करना है, देन इन्वेजिव जाना है. फिर और कौन सी चीज से आप इंक्रीज कर सकते हो O2 कंजम्पशन पेशेंट का? Position, पोजिशनिंग. yes, we can turn or reposition the client every 1 to 2 hours. एम्बुलेशन, Which position you can give for the best consumption of O2? low power, लो फाउलर, Low Fowler, yes. If it is not contraindicated, the best position is high power, semi Fowlers or high Fowlers. बट सर्जरी के बाद अगर उतनी स्ट्रेट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन नहीं दे सकते, तो लो फाउलर्स दे सकते हैं. तो यू कैन मेक द क्लाइंट सिट, उसकी वजह से लंग एक्सपांशन होगा, क्लाइंट इजिली ब्रीथ कर पाएगा. तो दिस आर द ट्रिक्स. हमें एनी हाउ O2 कंजप्शन इंक्रीज करना है. तो जब भी आप ऑप्शन रीड करो तो ऐसे थिंक करो कि ये ऑप्शन की वजह से O2, एनी हाउ O2 इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इफ यस, देन दिस इज योर आंसर. फिर pulmonary embolism, what is that? Pulmonary artery માં સ્ટોકિંગ થઈ જાય, area clots. Yes, there is an embolus. The embolus might be air or clot or thrombus. So that embolus is blocking the pulmonary artery and indirectly it is blocking the blood flow to one or more than one lobes of the lungs. What are the classical signs of pulmonary embolism? sudden dyspnea, Sharp chest pain. Sudden or sharp chest pain, but it will be sudden. And then Sudden dyspnea. sudden dyspnea. And third thing, Hypotension. yes, a drop in blood pressure or hypertension. These three signs are classical signs. ये साइंस रीड करके अगर क्वेश्चन में ये 3 साइंस दिए हैं तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है. अदर असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड बी tachycardia, tachycardia, Cyanosis. cyanosis. Yes,
नाउ इंटरवेंशंस आप क्या करोगे? Notify. Notify the PHCP. नोटिफाई द PHCP और एंड PHCP को नोटिफाई करने के बाद आपको दूसरा भी स्टेप करना है. यू हैव टू एक्टिवेट रैपिड रिस्पॉन्स टीम। Rapid response. रैपिड रिस्पॉन्स टीम बिकॉज दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. वाइटल्स तुरंत मॉनिटर करने हैं, पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देना है बिकॉज एक लोग या एक से ज्यादा लोग अफेक्टेड है तो उतने में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पेशेंट कंज्यूम कर पाएगा. सो ऑक्सीजन देना है, हमें ऑक्सीजन स्टार्ट करना है एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉज वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे. बट वी शुड नो कि अगर एयर एम्बोलिज्म है तो फर्स्ट वी हैव टू गिव द Position. विच पोजिशन? Left lateral. लेफ्ट लेटरल एंड Angles. विद ट्रेंडलर पोजिशन. यस. और अगर क्लॉट की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से है तो कोई पोजीशन नहीं है सर। पोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बट क्या करोगे आप? एंटीकोएगुलेंट Anticoagulant. स्टार्ट कर दूंगी. यस. आपने देखा होगा कि जब भी ऑर्थो की सर्जरी होती है, ऑर्थो मीन्स TKR THR वैसी सर्जरी होती है तो उस पेशेंट में अर्ली एम्बुलेशन इज नॉट पॉसिबल और उसकी वजह से डीवीटी हो सकते हैं. डीवीटी की वजह से अगर वो थ्रोम्बस वहां से निकल गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क होते हैं. सो आप कभी भी देखना ड्यूरिंग योर, आपने जॉब में भी देखा होगा, जब भी ऑर्थो की सर्जरी होती है तो डॉक्टर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स की वजह से एनोक्सापेरिन देते हैं. एनोक्सापेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट. यस. लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट्स है बट वो लो मॉलिक्यूलर है. हिपेरिन के जितना उसका इफेक्ट नहीं होगा बट वो प्रिवेंट कर सकता है. सो उससे डीवीटी भी नहीं होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई द सर्जन प्रिस्क्राइब्स एनोक्सापेरिन बिकॉज उसमें ना अर्ली एम्बुलेशन हो सकता है और अगर अर्ली एम्बुलेशन ना हुआ और उसकी वजह से डीवीटी हो गया तो वो थ्रोम्बस अगर डिस्लॉज होके पल्मोनरी आर्टरी में चला गया तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. सो उसकी वजह से पहले से ही वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं. एनी डाउट इन दिस? No. Okay. So next complication is hemorrhage. What is hemorrhage? A loss of large amount of blood externally or internally in a short time period is called as hemorrhage. There is a difference between bleeding and hemorrhage. Bleeding means it is a not that much large amount of blood. Hemorrhage is excessive अमाउंट ऑफ ब्लड जो लॉस हो गया है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े ही टाइम में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए उसको हम हेमरेज बोलेंगे. अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग. So excessive large amount of blood is lost in a short period of time which could be external or internal. Internal भी hemorrhage हो सकता है. So that is called as hemorrhage. How you can find कि patient को hemorrhage है? So first of all the patient would be restlessness. Why restlessness? Because blood loss हो जाएगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी, पेशेंट की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की ही है. ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ही कैरी कर सकता है तो उसकी वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा. पेशेंट वुड बी रेस्टलेस, वीक एंड रैपिड पल्स. कंपेंसेशन की वजह से पल्स रेट इंक्रीज होगा. देयर विल बी अ टैकीकार्डिया. बट क्वालिटी कैसे होगी पल्स की? वीक. वीक होगी बिकॉज देर इज नो इनफ ऑफ फ्लूइड. जो ब्लड है, फ्लूइड है, वो कम है लॉस की वजह से. बट एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म हार्ट बहुत ही ज्यादा पंप कर रहा है. सो पल्स रेट वुड बी रैपिड. टैकीकार्डिया होगा बट क्वालिटी वुड बी वीक. हाइपोटेंशन हो जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे ही ब्लड लॉस स्टार्ट होता है तो देर इज अ, जैसे ही पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, हेमरेज होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इन द ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन. बट अगर एक्सेसिव लॉस हो गए तो हार्ट कैन नॉट कंपेंसेट तो देन द ब्लड प्रेशर लो. कंप्रेसर में लो यस हो विल, गया. यस वो अभी उसकी कैपेसिटी होती है कंपेंसेट करने की. अगर उस पीरियड में आप आईवी फ्लूइड्स दे दो तो मेंटेन हो जाएगा. बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया है देन द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म विल फेल. वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. देन देयर विल बी अ हाइपोटेंशन. टैकीपनिया हो जाएगा पेशेंट को अगेन टू कंपेंसेट बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई है. दैट्स व्हाई
कूल एंड क्लैमी स्किन हो जाएगी बिकॉज प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है सब जगह पर. Reduce urine output. Whenever there is lack of fluid in the body, यूरिन भी आउटपुट कम हो जाएगा टू स्टोर द फ्लूइड इन द बॉडी. वो बॉडी में फ्लूइड स्टोर करने की वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है. अंडरस्टूड द असेसमेंट फाइंडिंग? Yes, ma'am. ओके. नाउ आपको पता चल गया है कि देयर इज अ हेमरेज. सो व्हाट यू कैन डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले असेस करोगे कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल. देन इफ इट इज एक्सटर्नल, प्रोवाइड प्रेशर टू द साइट ऑफ ब्लीडिंग. अगर एक्सटर्नली दिख रहा है आपको तो आप प्रेशर दे सकते हो कि ब्लड ब्लीडिंग कम हो. नोटिफाई द सर्जन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब. आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा बिकॉज पेशेंट ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सब जगह. एंड यू हैव टू एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एज प्रिस्क्राइब. आईवी फ्लूइड्स आपको देने ही होंगे. अगर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है तो आपको ब्लड प्रोडक्ट्स भी देना होगा. सो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू कीप थिंग्स रेडी. प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर इफ नेसेसरी. अगर कुछ ऐसा हुआ है कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है सो फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी. आई हैव वन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग. मेरा एक पेशेंट था जो फिस्टुला की सर्जरी के लिए एडमिट हुआ था. बट एनी हाउ इन द सर्जरी उसकी एक आर्टरी रप्चर हो गई थी. सो पेशेंट को इतना एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था सो तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी टू क्लोज दैट रप्चर. जो रप्चर हो गया था उसको सूचर करने के लिए फिर से सर्जरी करनी पड़ी. तो अगर एक्सेसिव ऐसे ब्लीडिंग हो तो फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी. क्लाइंट को फिर से प्रिपेयर करना होगा फॉर द सर्जरी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next complication is shock. So what is shock? Which shock? They are talking about hypovolemic shock. So loss of circulatory fluid volume which is usually caused by hemorrhage, that is called as shock. हेमरेज की वजह से एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, सर्कुलेटरी जो फ्लूइड वॉल्यूम था, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया है. सो इट लीड्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक. असेसमेंट फाइंडिंग कैसे पता चलेगा? तो सिमिलर टू हेमरेज, हेमरेज की वजह से ही शॉक हुआ है. सो सारे साइन एंड सिम्टम्स हेमरेज वाले ही होंगे. व्हाट यू कैन डू इन शॉक? इफ शॉक डेवलप्स, एलिवेट द लेग. अगर आपको पता चल गया एक्सेसिव हेमरेज हो रहा है तो वी नो पहले से ही हम हेमरेज क्यों स्टॉप करते हैं कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो. बिकॉज शॉक्स आर फैटल. कोई भी शॉक हो, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कोई भी शॉक है वो फैटल है. तो हम हेमरेज इसीलिए स्टॉप करते हैं कि शॉक में डेवलप ना हो जाए. पर अगर शॉक हो गया है, पेशेंट को एक्सेसिव लॉस हो गया है, so shock develop हो जाए तो what you have to do? Elevate the legs. Why? Venous returns high to proper blood body. Yes. अगर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो एटलीस्ट वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो हार्ट में ब्लड ज्यादा जाएगा और उससे वो इजीली पंप कर पाएगा. सो वीनस रिटर्न प्रमोट करने के लिए हमें वे लेग्स एलिवेट करने हैं. और व्हाट अबाउट हेड? हेड की पोजीशन कैसी रखोगे? એ લો કરવા Why? એટલે proper blood મળી રહે heart. Yes. Whenever there is decreased level of blood और circulating volume कम है, so make sure आपको legs elevate करने हैं और head low करना है. head low करने से proper ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलता रहेगा और लेग एलिवेट करने से वीनस रिटर्न प्रमोट होगा. तो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. नोटिफाई द सर्जन, डिटरमाइन एंड ट्रीट द कॉज ऑफ शॉक. हेमरेज की वजह से ही शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक. सो वी हैव टू डिटरमाइन कि किसकी वजह से हुआ है एंड जो कॉज है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, कहाँ से फ्लूइड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से शॉक हुआ. सो यू हैव टू ट्रीट दैट कॉज. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब. हमें ऑक्सीजन देना होगा. मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज अभी पेशेंट को हेमरेज में से शॉक हो गया है, धीरे धीरे पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगी. तो वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर इंक्रीज पल्स रेट और डिक्रीज ब्लड प्रेशर. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और पल्स रेट इंक्रीज होगी. सो वी हैव टू मॉनिटर दैट. मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट. Assess color, temperature, turgor and moisture of the skin and mucous membrane. डिहाइड्रेटेड हो जाएगा क्लाइंट, कलर भी एकदम साइनोस हो जाएगा. टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर ये कम हो जाएगा. पेशेंट स्किन विल बी कूल. तो हाइपोथर्मिया आपको
हाइपोथर्मिया तो नहीं, पर पेशेंट की स्किन आपको कोल्ड लगेगी। टर्गर कैसी हो जाएगी? इलास्टिसिटी पुअर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मॉइस्चर और वो सब भी डिक्रीज हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, ब्लड एंड कोलॉइड सॉल्यूशंस एज प्रिस्क्राइब। आपको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड बिकॉज शॉक है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? थिक સોલ્યુશન આવે છે No, there are two types of solutions, crystalloids and colloids. crystalloids के एग्जांपल क्या है? RLNS જે IV fluid છે. Okay, so these are called as crystalloids. Why these are called as crystalloids? ટ્રાન્સપરન્ટ I don't have right now pen. उसको crystalloids क्यों बोलते हैं? Because जो भी अपने सॉल्यूट है, जो उसमें डिसॉल्व हुआ है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, दे आर इन बिगर साइज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड्स। और कोलॉइड्स होते हैं, तो जो वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो भी सॉल्यूट डिसॉल्व है, दे आर इन स्मॉलर साइज, सो उसको कोलॉइड सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने किसी ने भी ऐसा कोई पेशेंट देखा है कि जिसको एक्सीडेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया हो, और ब्लड प्रोडक्ट अभी ब्लड ग्रुप देख के ब्लड प्रोडक्ट लाएंगे, पर तब तक आपको कुछ देना होगा, सो यू कैन गिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा? दे विल एड अप द वॉल्यूम इन द ब्लड। वो क्रिस्टलॉइड से अलग है। व्हेनेवर देयर इज अ शॉक और ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो, सो डॉक्टर्स प्रीफर कोलॉइडल्स इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। So, colloidals में basic differences, crystalloids are larger in size and colloidals are smaller in size. NS, RL, dextrose, these are called as crystalloids. जो हम regular basis पर IV fluid use करते हैं उसको crystalloids बोलते हैं। और colloidals में एक हीमोग्लोबिन ऐसा कुछ करके फ्लूइड आता है जो ट्रांसपेरेंट। yes, albumin is also colloid. Yes, albumin is also colloid. So वो ऐसा नहीं कि कलरफुल होता है, it could be transparent, but जो उसमें particles dissolved है, they are much smaller in size, so that is called as colloids. Albumin is another example of colloids. Understood? Yes. Okay, so colloidal solution आपको देने होंगे पेशेंट को। ब्लड तो डेफिनेटली देना पड़ेगा इस पेशेंट में। The really important point that you have to remember is, if the client has had a spinal anesthesia, do not elevate the legs any higher than placing them on a pillow. Otherwise, the diaphragm muscles needed for effective breathing could be impaired. अगर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया है, पेशेंट को हेमरेज हुआ है एनी हाउ, और पेशेंट को शॉक हो गया है, सो इस पेशेंट के लेग एलिवेट करोगे आप? No. नो। सो हमें पता है कि शॉक में हमें लेग्स एलिवेट करना है, बट क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा गया है कि पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया है, सो वी कैन नॉट एलिवेट द लेग्स। कितने कर सकते हो आप? सिर्फ पिलो रख के, पिलो के ऊपर जितने एलिवेट हो सके उतने ही एलिवेट करने हैं। बॉडी के लेवल से बहुत ज्यादा एलिवेट नहीं करने हैं, सिर्फ पिलो रखना है नीचे और पिलो के ऊपर लेग्स रखो, उतने ही एलिवेट करने हैं। अगर ज्यादा एलिवेट कर दोगे, सो डायफ्राम है उसको ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, डायफ्राम पे प्रेशर होगा और डायफ्राम एक्सपांड नहीं होगा, सो उसकी वजह से ब्रीथिंग इम्पेयर हो जाएगा। सो मेक श्योर जब भी स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया हो पेशेंट में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया हो कि पेशेंट रिसीव्ड स्पाइनल एनेस्थेशिया बिफोर सर्जरी, एंड फिर पूरी ऐसी सिचुएशन दी गई है कि दिस इज हाउ द ब्लीडिंग ऑकर्स, हेमरेज हुआ है, उसकी वजह से शॉक हो गया है, सो वी नो द इंटरवेंशन दैट वी हैव टू एलिवेट द लेग, पर उसमें थिंक अबाउट दैट कि इस पर्सन में हम पिलो के ऊपर उतना ही एलिवेट कर सकते हैं, ज्यादा एलिवेट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next is thrombophlebitis. Thrombophlebitis is again another complication. So what is thrombophlebitis? Phlebitis, itis means Inflammation of vein. inflammation of veins, but phlebitis, अगर phlebitis लिखा होता तो it is inflammation of vein, but आगे लिखा है thrombo, so yes, Clot. there is clot formation, there is a thrombus formation, उस clot formation की वजह से vein में inflammation हुआ है। So thrombophlebitis is the inflammation of vein,
often accompanied by clot formation. Clot formation की वजह से inflammation हुआ है, so that is called as thrombophlebitis. If there is only phlebitis, that indicates only inflammation of the veins. But thrombophlebitis लिखा हो, so we have to understand कि there is a clot and उसकी वजह से inflammation हुआ है. Veins in the legs are affected most commonly. कौन सी veins में ज्यादा होता है thrombophlebitis? So जो calf muscles area है, जो लोअर लेग है, नीचे वाला पोर्शन, वहां पर ज्यादा होता है. तो वेन्स ऑफ द लेग्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, उसमें थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ज्यादा देखने मिलता है. असेसमेंट फाइंडिंग क्या है, कैसे पता चलेगा पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबिटिस है? वेन इन्फ्लामेशन होगा. इन्फ्लामेशन होगा तो आप पेशेंट को टच करोगे काफ एरिया में, तो कैसा फील होगा आपको? इफ देयर इज इन्फ्लामेशन, देन इन्फ्लामेशन की वजह से ऑलवेज क्या होता है? पेन था सर. पेन, यस, द प्लेस विल बी टेंडर. हम जैसे ही टच करेंगे पेशेंट को पेन होगा. फिर रिलेटेड टू टेम्परेचर, एलिवेटेड. हाँ, सो वार्म आपको फील होगा जैसे ही आप टच करोगे काफ मसल्स के एरिया में, तो आपको वार्म फील होगा. सो वेन इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसकी वजह से आप टच करोगे तो आपको वार्म लगेगी वो एरिया. एकिंग और क्रैम्पिंग पेन होता रहेगा पेशेंट को. वेन्स फील हार्ड एंड कॉर्ड लाइक. वेन्स ऐसी हार्ड हो जाएगी और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जैसे ही आप टच करोगे टेंडर हो जाएगा पेशेंट को. पेन होगा बहुत ही, और टेम्परेचर भी एलिवेट हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन. What is the another sign जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि there is a thrombus formation DVT के लिए? DVT हो तो कैसे पता चलेगा पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है? DVT हुआ है पेशेंट को और DVT की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है थ्रोम्बस की वजह से. सो अनदर असेसमेंट कैसे पता चलेगा? There is a sign. સાઈન Sorry. આવે છે ને પગ ઉપર કરીને So what is કાફ that? મસલ માં પેઇન થાય. Hormone હોમર signs. સાઈન So it would be positive or પ્રેઝન્ટ negative? હોય તો પ્રેઝન્ટ હોય પોઝિટિવ હોય તો ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ અને ના હોય તો Yes. નોર્મલ. Yes. So positive hormone signs you can also assess in these patients. Interventions क्या करोगे? So monitor the leg for swelling. We have to do the assessment. So we have to assess whether there is a swelling. Inflammation होगा तो there will be always inflammation की वजह से swelling, pain, then increased temperature. वो फ्री में होगा ही, inflammatory reaction में ये होता ही है. तो we have to assess the leg for swelling, inflammation, pain, tenderness, venous distension हो गया या नहीं, and cyanosis. Notify the surgeon if any of these signs are present. अगर इसमें से कुछ भी दिखता है तो तुरंत we have to notify the surgeon. Elevate the extremity 30 degrees without allowing any pressure on the popliteal area. We have to elevate the leg 30 degrees. हमें leg elevate करने हैं, but make sure elevate करते वक्त प्रेशर नी के पीछे प्रेशर ना हो. अगर नी के पीछे प्रेशर होगा तो वो वीनस रिटर्न नहीं होगा. डीवीटी थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों हुआ? वीनस स्टेसिस की वजह से. व्हाट इज दैट? वीनस स्टेसिस मींस ब्लड वेन में मतलब कलेक्ट ब्लड पूल हो गया, वो फ्लो नहीं हो रहा था, एक ही जगह पर स्टेडी हो गया, उसकी वजह से सेडिमेंट होके क्लॉट फॉर्मेशन हो गया. सो हमें वीनस रिटर्न प्रमोट करना है कि वीनस स्टेसिस जो ब्लड पूल हुआ था वो निकल जाए. तो वी आर एलिवेटिंग द लेग्स. पर अगर नी के पीछे प्रेशर हो जाएगा सो देयर विल बी अ ब्लॉकेज. नी के पीछे ऐसे ये लेग है और यहाँ से ब्लॉक हो जाए, कुछ प्रेशर आ जाए, तो ब्लड वीनस रिटर्न हो पाएगा प्रॉपरली? अगर पॉप्लिटियल एरिया दैट इज बिहाइंड द नी हम प्रेशर अप्लाई कर दे, पेशेंट का लेग एलिवेट कर रहे हैं, पर लेग एलिवेट करने के साथ साथ हमने पीलो रख दिया है बिहाइंड द नी, जिसकी वजह से पेशेंट के नी के पीछे प्रेशर आ रहा है, तो इसकी वजह से वीनस रिटर्न होगा प्रॉपरली? नो. No, ma'am. No. નો So there will be no any improvement in the condition. So make sure आप elevate तो करो पेशेंट के लेग 30 डिग्री,
पर पॉप्लिटियल एरिया में कोई प्रेशर ना हो। अगर प्रेशर होगा तो वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। सो मेक श्योर कि पॉप्लिटियल एरिया में कोई प्रेशर ना हो while you are elevating the legs. Encourage the use of anti-embolism stockings as prescribed. Yes, anti-embolism stockings हम दे सकते हैं. Remove the stockings twice a day to wash and inspect the legs. हमें वो जो एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स है वो रिमूव करने होंगे ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार रिमूव करने पड़ेंगे। टू वॉश द स्टॉकिंग्स एंड इंस्पेक्ट द लेग्स। अगर हम पहना के ही रखेंगे तो स्किन इरिटेशन या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं वो भी लेग्स का इंस्पेक्शन करने के लिए भी हमें वो रिमूव करना होगा। देयर इज अ की डिफरेंस, वो आपको खास याद रखना है। इफ देयर इज अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, पेशेंट को थ्रोम्बस हो गया है, so will you provide anti-embolism stockings? नो, Why? કેમ કે ઓલરેડી થઈ ગયું છે તો પછી પ્રિવેન્ટ કરી. Your answer is correct, but your rationale is wrong. Any other answers? pulmonary embolism. Yes. थ्रोम्बस ऑलरेडी फॉर्म हो गया है। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स कैसे वर्क करता है? दे प्रोवाइड द वाइब्रेशंस, उसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है। अगर उसकी वजह से अगर वो थ्रोम्बस डिस्क्लॉज हो गया तो नाउ इट इज एम्बोलस, कभी भी पल्मोनरी आर्टरी में जा सकता है। सो मेक श्योर ये चीज आपको याद ही रखनी है। whenever there is thrombus you cannot provide anti embolism stockings। सिर्फ इन्फ्लामेशन है तभी आप एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स दे सकते हो कि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। इन्फ्लामेशन है तो उससे भी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, बिकॉज वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है तो प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी सब आ जाएंगी और इट कुड क्रिएट क्लॉट फॉर्मेशन ऑल्सो। समटाइम्स क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन हुआ है तो प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी सब वहां पर आ जाएंगी और क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। सो मेक श्योर कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है तब आप एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स दे सकते हो। सॉरी, फ्लेबाइटिस है, सिर्फ इन्फ्लामेशन है तब आप एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स दे सकते हो टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। बट क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है इफ देर इज एनी साइन कि पेशेंट को थ्रोम्बस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है, सो डोंट सिलेक्ट द आंसर ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स। मेरी साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये ही एंटी एम्बोलिज्म कर लिया था, देन आई केम टू नो कि थ्रोम्बस हो तब आप एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स नहीं दे सकते ड्यू टू रिस्क ऑफ डिसलॉजमेंट ऑफ दैट क्लॉट। थ्रोम्बस हो तब आप नहीं दे सकते। एट दैट टाइम अगर थ्रोम्बस है तो आप क्या कर सकते हो? Drug therapy आप सकते हैं। Drug Yes, we can give anticoagulants, but we cannot provide anti-embolism stockings. Make sure, remember this difference. Remember the rationale. You have given the correct answer, but the rationale is this. Due to dislodgement of thrombus, we cannot provide anti-embolism stockings whenever there is a thrombus formation. अगर thrombus formation नहीं है तो आप दे सकते हो anti-embolism stockings कि thrombus हो ही नहीं। Understood? યસ. Okay. Use a sequential compression device as prescribed. We have already seen what is sequential compression device, but this is not after thrombus formation, before thrombus formation. Perform passive range of motion exercise every 2 hours if the client is confined to bed rest. हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं। पेशेंट को फ्लेबाइटिस इन्फ्लामेशन हो गया है, सो हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे एवरी 2 आवर। पेशेंट अगर बेड से नहीं उतर सकता तो हम लेग की एक्सरसाइज तो करवा सकते हैं जिसकी वजह से पूल ना हो, ब्लड स्टेसिस ना हो। एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। डू नॉट अलाउ द क्लाइंट टू डेंगल द लेग्स। व्हाट इज दैट? डेंगल नहीं कर सकते क्लाइंट उनके लेग्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेंगलिंग? ફ્રીલી હેંગ નહીં રાખવાના. हाँ, जब हम बेड की एज पर बैठते हैं तो लेग्स कैसे हमारे नीचे लटके हुए होते हैं। सो पेशेंट हमें एडवाइस करना है कि डू नॉट डेंगल योर लेग्स, ऐसे लटका कर मत बैठो, बिकॉज उससे क्या होगा, ब्लड विल बी रिमेन इन द लेग्स, लोअर लेग्स ओनली, सो वीनस स्टेसिस हो जाएगा। सो पेशेंट को हमें एडवाइस करनी है कि डू नॉट डेंगल योर लेग्स। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू सिट इन वन पोजिशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक ही पोजिशन में बहुत लंबे टाइम से नहीं बैठना है। Change your positions frequently. Ultrasound may be ordered. USGP कर सकते हैं। USG क्यों करनी है? To find out is there any clot formation or not. Clot formation है या नहीं, उसके लिए हमें USG कर सकते हैं। May be ordered
Administer anticoagulant such as heparin sodium or enoxaparin as prescribed. अगर थ्रोम्बस है so हमें एंटीकोएगुलेंट्स ही देने हैं. We cannot provide sequential compression device और एम्बुलेशन कुछ भी हम नहीं कर सकते. वी डोंट वांट कि वो थ्रोम्बस वहां से फ्लोट होके निकल जाए. हमें उस थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करना है. सो वी विल ओनली एडमिनिस्टर एंटीकोएगुलेंट्स. दूसरी कोई भी थेरापी उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Next is urinary retention. Urinary retention is so common. Her 10 out of 7 patient or 6 patient experiences urinary retention. So what is that? Urinary retention is involuntary accumulation of urine in the bladder as a result of loss of muscle tone. पेशेंट वॉलंटियरली वो यूरिन होल्ड नहीं कर रहा है. इनवॉलंटरी वो यूरिन होल्ड हो गया है. क्यों होल्ड हो गया है, क्यों अक्यूमुलेट हो गया है? ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टोन. पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया था. एनेस्थेशिया की वजह से पूरी बॉडी डिप्रेस हो गई है, सारे मसल्स भी डिप्रेस हो गए हैं. सो उसकी वजह से जो यूरिनरी स्पिंचर होते हैं, जो ओपन और क्लोज होते हैं, सो वो भी लूज हो गया है, उनके मसल टोन भी लॉस हो गया है. सो उसकी वजह से यूरिन होल्ड हो गया है. अब यूरिन निकल नहीं पा रहा है बिकॉज उसकी टोनिसिटी ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तब वो अच्छे से ओपन हो पाएंगे. बट वो वीक हो गया है, वो ओपन और क्लोज नहीं हो पा रहे अच्छे से. क्लोज है तो वो क्लोज ही रहेंगे. तो उसकी वजह से वो यूरिन नहीं आ पा रहा है. इट इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ anesthetics or opioid analgesics and appears 6 to 8 hours after surgery. वो क्यों हुआ, क्यों उनकी मसल टोन लॉस हो गई ब्लैडर की? बिकॉज ऑफ एनेस्थेशिया और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. और उसकी इफेक्ट 6 to 8 hours आफ्टर सर्जरी, तब तक उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है. आफ्टर 8 hours उनकी इफेक्ट कम हो जाएगी और 8 hours के बाद तो पेशेंट वॉइड करेगा ही. अगर 8 hours के बाद भी पेशेंट वॉइड नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू मेक द पेशेंट वॉइड. assessment finding. How you can assess the patient has urinary retention? तो पहले तो inability to void. Patient void ही नहीं कर पा रहा है. Restlessness and diaphoresis. क्यों? Because patient can experience कि उसका bladder full हो गया है, पर वो यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है. So patient restless हो जाएगा, diaphoretic हो जाएगा patient. लोअर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को. लोअर एब्डोमिनल इन द ब्लैडर, ब्लैडर में ही पेन होगा. ब्लैडर एकदम डिस्टेंडेड होगा. आप जैसे पाल्पेट करोगे यू कैन फील देयर इज अ डिस्टेंडेड ब्लैडर. हाइपरटेंशन हो जाएगा पेशेंट को. ऑन परकशन द ब्लैडर साउंड्स लाइक अ ड्रम. ऐसे फ्लूइड भरा हुआ हो, पूरा ब्लैडर फुल हो, तो जैसे ही आप परकशन करोगे यू कैन फील कि इट क्रिएट्स अ साउंड लाइक ड्रम. ड्रम जैसा साउंड आएगा. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग. व्हाट आर द इंटरवेंशंस? इंटरवेंशंस क्या करोगे? तो फर्स्ट यू हैव टू असेस फॉर द वॉइडिंग. यू हैव टू चेक. असेसमेंट आप पहले करोगे. नो व्हाट इज योर, आपको इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको एनी हाउ क्या करना है? voiding यूरिन पास कराना. यस, यू हैव टू पास द यूरिन. हमें यूरिन पास करवाना है. सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू? फर्स्ट विल बी ऑलवेज Tap yes waters. No. लीस्ट इन्वेजिव. पहले लीस्ट इन्वेजिव, इन्वेजिव ना हो वैसे पहले करनी है. देन अगर उससे नहीं हो रहा, देन यू कैन गो फॉर द इन्वेजिव मेथड. यस, इन्वेजिव मेथड. इसमें फार्मेक ड्रग से ऐसा, इट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग ड्रग्स. यूरिन करवाने के लिए ड्रग्स नहीं दे सकते आप. इसमें मेथड्स ही यूज हो सकती है. जब मेडिसिन की बात हो तब नॉन फार्माकोलॉजिकल पहले, देन फार्माकोलॉजिकल. बट इसमें ड्रग्स की यूज नहीं होगा. आप अगर लेसिक्स और फ्यूसेमाइड्स ऐसे दोगे तो उससे भी वो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, वो जो मसल टोन है वो नहीं लाएगा. सो मसल टोन ही वीक है. अगर आप फिर भी आप पेशेंट को डायूरेटिक्स दोगे, सो यूरिन प्रोडक्शन से ब्लैडर और डिस्टेंट हो जाएगा, पर यूरिन पास होगा उससे? No. नो, बिकॉज मसल टोन ही वीक है. वो डायूरेटिक्स है, उससे मसल टोन इंप्रूव नहीं होता है, उससे सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है. तो अगर
ऐसी गलती मत करना, पेशेंट को अगर यूरिनरी रिटेंशन है तो डोंट गिव डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स से यूरिन प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा और पेशेंट वॉइड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन। सो वी विल नॉट गो फॉर द डायूरेटिक्स। अगर पेशेंट यूरिन एक बार कर लेता है और यूरिन आउटपुट कम है देन यू कैन गो फॉर द डायूरेटिक्स, अंडरस्टूड। अगर 30 ml से कम है, 30 ml पर आवर उससे कम है, then you can go for the diuretics की यूरिन प्रोडक्शन हो, but before that you cannot give diuretics. So first of all we have to monitor for voiding, then assess for distended bladder by palpation एंड ब्लैडर स्कैनिंग इफ इंडिकेटेड। आप पाल्पेट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्लैडर डिस्टेंडेड है या नहीं, और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर द ब्लैडर स्कैनिंग ऑल्सो, यूएसजी ऑफ द ब्लैडर। सो उससे भी पता चल जाएगा कि यूरिन कितना है अंदर। एनकरेज एम्बुलेशन एज प्रिस्क्राइब व्हेन प्रिस्क्राइब। अगर पेशेंट को ऐसे बेड रेस्ट ऐसा कुछ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, एम्बुलेशन करवा सकते हो तो अर्ली एम्बुलेशन करवा लो, उसकी वजह से मसल टोन इंक्रीज होगा और पेशेंट इजिली वॉइड कर पाएगा। एनकरेज फ्लूइड इनटेक अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर फ्लूइड इनटेक ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। Assist the client to void by helping the client stand or ensuring proper positioning for voiding. Sometimes it also happens कि पेशेंट को आप बोलते हो कि बेड में ही वो बेड पान दे के आप बोलते हो कि यूरिन पास कर दो, पर पेशेंट ऐसे यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉपर पोजीशन चाहिए होगी टू पास द यूरिन। सो आपको पेशेंट को हेल्प करनी होगी इन वॉइडिंग। आप पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन और प्रॉपर पोजीशन, अगर फीमेल हो तो सिटिंग पोजीशन, ऐसे प्रॉपर पोजीशन देके आप उसको वॉइड करवा सकते हो, नॉट इन द बेड। प्रोवाइड प्राइवेसी। pour the warm water over the perineum। आप warm water भी ऐसे एब्डोमेन पर ऐसे pour कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, और allow the client to hear the running water to promote the voiding। वार्म वाटर पोर कर सकते हो, फिर रनिंग वाटर ऐसे आवाज सुन के भी पेशेंट को यूरिनेट की अर्ज हो जाएगी और पेशेंट यूरिन पास कर देगा। सो दिस आर द नॉन इन्वेजिव मेथड्स। Contact the surgeon and catheterize the patient client as prescribed after all non-invasive techniques have been attempted। This is so important। सारी नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स हमने कर ली है फिर भी पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट द सर्जन और उनको बोलना है कि पेशेंट को सारी नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज कर ली फिर भी पेशेंट वॉइड नहीं कर रहा है आफ्टर 6 to 8 hours। नाउ वी हैव टू कैथेटराइज द पेशेंट। सिंगल ल्यूमेन कैथेटर यूज करके सिर्फ वो यूरिन निकाल देंगे, अंडरस्टूड। कैन यू कैथेटराइज, आप ऐसे बोल सकते हो पेशेंट सर्जन को आफ्टर 4 hours के बाद पेशेंट को अभी भी यूरिन पास नहीं हुआ है, आपने सारी नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज कर ली, फिर अपने सर्जन को बोला कि मैंने सारी नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज कर ली, स्टिल पेशेंट इज नॉट वॉइडिंग, तो आप कैथेटराइज कर सकते हो ऐसे पेशेंट को? नो। व्हाई? अगर इस बार आता है ना 6 to 8 hours। हाँ, 6 to 8 hours एटलीस्ट वी हैव टू वेट। उस तब तक तो एनेस्थेसिया की इफेक्ट भी खत्म नहीं है। 6 to 8 hours आपने वेट किया, स्टिल पेशेंट इज नॉट वॉइडिंग, देन यू कैन यूज ऑल दिस नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स, और तब भी अगर नहीं हो रहा है देन यू कैन कैथेटराइज। अर्ली कैथेटराइजेशन से कोई मतलब ही नहीं बनता। सो एटलीस्ट वेट फॉर 6 to 8 hours, और 6 to 8 hours वेट करने के बाद अगर आपने 8 hours वेट किया है तो जब भी पेशेंट यूरिनेट कर रहा है तो कितना यूरिन होना चाहिए आफ्टर 8 hours? 200। After 8 hours, 240। 240 ml, 240 ml यूरिन होना चाहिए, एटलीस्ट 240 ml यूरिन होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉमन है आफ्टर सर्जरी। कॉन्स्टिपेशन इज एबनॉर्मली इनफ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल, नॉट फ्रीक्वेंट। अगर फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल होगा तो इट इज कॉल्ड एज Diarrhea। diarrhea, yes, but constipation is opposite to that. So infrequent passage of stool, abnormally infrequent passage of stool is called as constipation, which may result from anesthesia, opioid analgesics, decreased activity and decreased oral intake। जो एनेस्थेशिया देते हैं उसकी वजह से पूरी बॉडी डिप्रेस हो जाती है, सारी सिस्टम डाउन हो जाती है, तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट भी कम हो जाएगी, सब डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टूल पास नहीं होगा। एक्टिविटी भी कम हो गई थी बिकॉज पेशेंट
पेशेंट सोने मतलब सर्जरी से पहले भी ऐसे बेड पर था, रेस्टिंग पीरियड में था, आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होगी? ओरली भी पेशेंट ने कुछ लिया ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. So these are the reasons. When the client resumes a solid diet post-operatively, failure to pass the stool within 48 hours may indicate constipation. Yes. सर्जरी के बाद पेशेंट ने नॉर्मली अभी सॉलिड डाइट लेना चालू कर दिया है, पेशेंट ने नॉर्मल रेज्यूम कर लिया है सॉलिड डाइट. सॉलिड डाइट रेज्यूम करने के बाद भी 48 आवर्स तक पेशेंट को स्टूल पास नहीं हो रहा है, देन वी कैन से पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन. इट इज नॉट लाइक दैट पेशेंट ने खाना ही नहीं खाया था सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद. सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि पेशेंट स्टूल पास करे? बट खाना खाने के 48 आवर्स बाद भी पेशेंट स्टूल पास नहीं कर रहा, then we can say कि patient is having constipation, not before that. Understood? Yes. Okay. Assessment, how you can assess कि patient को constipation है. So bowel sound आपको auscultate करना है. Bowel sound कैसे होंगे when the client is having constipation? Bowel sound कैसे होंगे? डिमिनिश पे जैसे Diminished, लो होंगे. Yes. डायरिया में bowel sounds हाई होंगे because एक्टिविटी कम हो गई है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो बॉवल साउंड भी कम होगी. एब्सेंस ऑफ बॉवल मूवमेंट्स, जो बॉवल मूवमेंट्स है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी एब्सेंट होगी. एब्डोमिनल डिस्टेंशन वुड बी देयर. एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिपेटेड है, स्टूल अंदर ही भरा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, देयर इज नो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. एनोरेक्सिया, हेडेक एंड नोजिया, क्लाइंट को खाने की इच्छा ही नहीं होगी बिकॉज स्टूल पास ही नहीं हो रहा है. सो हाउ क्लाइंट कैन कंज्यूम द फूड? हेडेक होगा, नोजिया होगा. इंटरवेंशंस आप क्या कर सकते हो व्हेन द क्लाइंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन? सो एनकरेज द फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml पर डे अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. वी नो कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम हाई फाइबर डाइट देते हैं, फिर लेक्सेटिव्स देते हैं और हाई फ्लूइड. दिस आर द की ट्रीटमेंट फॉर द कॉन्स्टिपेशन. बट फ्लूइड भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो. अगर कार्डियक पेशेंट है, रीनल पेशेंट है, तो हम फ्लूइड दे सकते हैं उनको? नहीं दे सकते. सो अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो 3000 ml पर डे जितना फ्लूइड आप दे सकते हो, नॉट मोर देन दैट, अप टू 3000 ml पर डे. एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, जल्दी चलाने से सारी मूवमेंट सब कुछ रिटर्न बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट कैन पास द स्टूल. एनकरेज द कंजप्शन ऑफ फाइबर फूड अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो फाइबर रिच फूड भी आप दे सकते हो पेशेंट को. Provide privacy and adequate time for the bowel elimination. Sometimes it also happens कि पेशेंट को स्टूल पास करने में it takes much time. पेशेंट को वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ही स्टूल पास होता है. सो प्राइवेसी और एडिक्वेट टाइम भी देना है. इट इज नॉट लाइक कि 5 मिनट्स हो गए और वी आर आस्किंग द पेशेंट टू कम आउट फ्रॉम द टॉयलेट. Give the time to the patient for the bowel elimination. Administer stool softeners and laxatives as prescribed. अगर डॉक्टर ने ऐसे एडवाइस किया है, so we can also give the stool softeners and laxatives. So this is the intervention for the constipation. Let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? Okay, so today we have seen related to hemorrhage. What is hemorrhage? Loss of large Loss of large amount of blood. It could be इंटरनली और और external. Yes. Internal hemorrhage होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? sign of hemorrhage. There are different routes. Blood कभी भी अंदर रहेगा नहीं. It will find their way. So there are different ways. कैसे बाहर आएगा वो blood? Internal bleeding कैसे बाहर निकलेगा? In the form of Nose bleed, hematemesis, yes, nose bleeding. Then hematemesis, hematemesis, hematuria, इकोमोसिस hematuria. Then melena, blood in stool. So these are the different forms. इससे भी आपको पता चलेगा कि पेशेंट को एक्सेसिव हेमरेज हो रहा है. असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या होंगे पेशेंट को हेमरेज है तो?
इनिशियली देयर विल बी अ हाइपरटेंशन, बट हेमरेज हो गए, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो गया है, सो देयर विल ब्लीडिंग होगा, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर, if patient is Hypertension. experiencing bleeding, so there would be a hypertension as a compensatory mechanism because blood loss होना start हुआ है. Hemorrhage is excessive loss of blood, so उस तब कैसा होगा ब्लड प्रेशर? लो। Low होगा. लो हो जाएगा, बिकॉज ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तब बॉडी इज स्टार्टिंग टू कंपेंसेट, बट अब कंपेंसेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज अमाउंट ही नहीं है, ब्लड एक्सेसिवली लॉस हो गया है, सो देयर विल बी हाइपोटेंशन. ब्लीडिंग में हाइपरटेंशन होगा, इन हेमरेज एंड इन शॉक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वुड फेल एंड देयर विल बी हाइपोटेंशन. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. तो कैसे दूसरी साइंस क्या होगी? कूल एंड क्लेमिस्टीन, यस. टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, सॉरी, यूरिन आउटपुट विल डिक्रीज, यस. टैकीपनिया। टैकीपनिया, patient will experience dyspnea. Yes, because with the hemorrhage there is no oxygen, so patient को shortness of breath होगी, तो dyspnea भी होगा patient को. Restlessness होगा. रेस्टलेसनेस, यस. तो दिस आर द साइंस. इंटरवेंशंस पहले हमें असेस करना है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल. अगर एक्सटर्नल आपको दिख रहा है कि यहाँ से ही ब्लीडिंग हो रहा है, सो यू हैव टू प्रोवाइड द प्रेशर कि ब्लीडिंग ना हो, आपको ऐसे दबा के रखना है. नोटिफाई द सर्जन, वी हैव टू गिव द ऑक्सीजन बिकॉज ब्लीडिंग के ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है, सो वी हैव टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स एंड ब्लड. एंड अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़े तो सर्जरी के लिए भी क्लाइंट को प्रिपेयर करना होगा. शॉक इज which shock they are talking about? हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हेमरेज। Because of hemorrhage. So assessment finding would be similar to the shock, hemorrhage. ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो? इंटरवेंशन क्या करोगे? Elevate the legs. Elevate the leg and lower the हेड। हेड. उसमें अब ऐसा मत सोचना कि टू गेट मोर ऑक्सीजन लेट मी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड. नो, बिकॉज पेशेंट इज इन शॉक, you cannot elevate the head of the bed. You have to lower the head in a supine position कि proper oxygen, proper blood मिल सके brain को. So we know कि shock है तो there will be a decrease level of oxygen, but वो increase करने के लिए आप head elevate नहीं कर सकते. तो remember these things. So we have to elevate the legs and lower the head. Then Notify the surgeon. notify the surgeon. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि शॉक क्यों हुआ है, हेमरेज हुआ है पर कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है. सो उसको आपको ट्रीट करना होगा, ऑक्सीजन देना होगा पेशेंट को, पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेक करनी होगी, वाइटल साइंस चेक करने होंगे. देयर वुड बी टैकीपनिया, टैकीकार्डिया एंड टेम्परेचर है चेक करो. हाइपोटेंशन होगा. फिर इनटेक आउटपुट चेक करना है, पेशेंट की इनका कलर, टेम्परेचर, टर्गर, मॉइस्चर, म्यूकस मेम्ब्रेन सब चेक करना है. IV फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर करने हैं एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन. नॉर्मली जब पेशेंट को शॉक लगता है और हाइपोवोलेमिक शॉक, कोलॉइडल सॉल्यूशन ही हम देते हैं. तो वी हैव टू आल्सो एडमिनिस्टर दिस. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर? If patient has spinal anesthesia पे तो leg elevate नहीं करवाना, just pillow Not- મૂકીને leg elevate કરી શકાય. यस, नॉट मोर देन दैट. हम पीलो रखकर जितना एलिवेट कर सकते हैं उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है. व्हाट इज द रैशनल फॉर दैट? क्यों नहीं कर सकते? Breathing could be impaired. क्यों? बिकॉज Diaphragm. लेग एलिवेट करने से डायफ्राम पर प्रेशर गिरेगा और डायफ्राम कंप्लीटली ऐसे रिलैक्स नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपरली एक्सपांड हो. बिकॉज हम हेड तो आप कर ही नहीं सकते शॉक में, हमें सुपाइन ही रखना है पेशेंट को. सो हम लेग, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो लेग ज्यादा एलिवेट करेंगे
तो पेशेंट का डायफ्राम है वो ऐसे श्रिंक हो जाएगा और लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाएंगे और ब्रीथिंग इम्पेयर हो जाएगा. सो यू हैव टू रिमेम्बर द रैशनल. एंग्लिश में रैशनल स्कोरिंग क्वेश्चंस भी आते हैं where 2 blanks will be given. For this answer you have to select the correct rational. क्यों ऐसा है? अगर आप incorrect rational select करोगे so you will get 0 marks. दोनों आंसर सिलेक्ट करेक्ट करोगे तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा. और जो ऑप्शंस होंगे वो कैसे होंगे? आपको सही ही लगेंगे सारे कि ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है. एंग्लिश में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होगा कि ऑप्शन सारे करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट नहीं होंगे, बट उसमें से बेस्ट आपको सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफ्लेबिटिस. व्हाट इज दैट? Inflammation of vein. Accompanied by it is thrombo. Clot Clot formation. Clot formation. formation, yes. So कौन से एरिया में मेजरली देखने को मिलता है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस? इन द लेग्स. Leg. Legs. असेसमेंट फाइंडिंग क्या है? Veins માં inflammation થઈ ગયું. Cramping pain. Cramping pain થતો હોય. Aching pain or cramping pain. This is the quality. Then પછી temperature વધી ગયું. પછી ત્યાં temperature touch of, કરો ને તો આમ tender feel થાય. yes, whenever we touch the client तो पेशेंट को टेंडरनेस होगी, पेशेंट को पेन होगा. और वेन्स कैसे दिखेगी? Hard. हाँ, एकदम आप टच करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, वहां पर कॉर्ड लाइक आपको फील होगा. इंटरवेंशन क्या करोगे? फर्स्ट यू हैव टू डू असेसमेंट. असेस क्या करोगे आप? वेदर देयर इज अ Swelling. स्वेलिंग, Inflammation, pain, Inflammation, pain. tenderness. टेंडरनेस, यस, वीनस डिस्टेंशन, साइनोसिस, ये सब है या नहीं? इफ इट इज प्रेजेंट वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी. एक्सट्रीमिटीज 30 डिग्री तक एलिवेट करना है, बट मेक श्योर नॉट टू प्रोवाइड प्रेशर Operator area. in Popliteal popliteal area. area, नहीं तो वीनस रिटर्न नहीं होगा. We can also use anti-embolism stockings, but when? Only phlebitis હોય તો. Yes, before thrombus formation. Thrombus formation नहीं हुई है उससे पहले दे सकते हैं. If there is a thrombus formation, we cannot provide anti-embolism stockings. अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको दिन में Every 2 hours. ये twice in a day आपको निकालनी होगी. क्यों? टू वॉश दैट स्टॉकिंग्स ऑल्सो. एंड जब आप निकालोगे तो आप लेग भी इंस्पेक्ट कर लोगे कि लेग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन इंटेक्ट अच्छी है या नहीं. आप सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस भी यूज कर सकते हो, बट बिफोर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप कर सकते हो बिफोर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. अर्ली एम्बुलेशन कर सकते हो बिफोर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. देन डू नॉट अलाउ द क्लाइंट टू टेंगल द लेग्स. उससे वीनस स्टेसिस ही ना हो और थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी ना हो. क्लाइंट को आप बोल सकते हो कि एक ही पोजीशन में बहुत टाइम से नहीं रहना है, यू हैव टू चेंज योर पोजीशन. अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हम. और अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है तो द ओनली थिंग वी कैन डू इज Anticoagulation. anticoagulants. Yes. Urinary retention means Involuntary accumulation of urine. yes, due to Loss of muscle tone of bladder. लॉस ऑफ मसल टोन. ब्लैडर्स के मसल है उसकी टोनिसिटी लॉस हो गई है. क्यों लॉस हो गई थी? ड्यू टू Anesthesia or opera. एनेस्थेसिया. यस. और कब तक देखने को मिलती है ये इफेक्ट उसकी? After 6 to 8 6 to hours 8 after. hours. 8 hours आफ्टर सर्जरी. यस. तो असेसमेंट आप क्या करोगे पेशेंट में? Void કરવાની inability વાળું. पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा है, इनेबल टू वॉइड. Restlessness and diaphoresis. यस, पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो गया है, डायफोरेटिक हो गया है. Lower Hypertension. abdominal pain. लोअर एब्डोमिनल पेन, जहां पर ब्लैडर है वहां पर पेन होगा पेशेंट को. ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा. आप परकशन करोगे तो कैसा साउंड आएगा? Drum Drum. like sound. Drum. ड्रम जैसा. बिकॉज ब्लैडर एकदम फुल है, पानी से पूरा भरा हुआ है, तो ड्रम जैसा साउंड आएगा. इंटरवेंशन क्या करोगे? पहले तो वॉइडिंग के लिए मॉनिटर करोगे पेशेंट वॉइड कर पा रहा है या नहीं. फिर आप ब्लैडर से पाल्पेशन करके ब्लैडर डिस्टेंडेड है या नहीं वो चेक करोगे. अगर नहीं पता चल रहा है तो ब्लैडर स्कैनिंग भी कर सकते हो सिंपली. फिर आपको नॉन इन्वेजिव मेथड से ही पहले तो पेशेंट को वॉइड करवाना है. सो उसके लिए आप एम्बुलेशन करवा सकते हो, फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हो,
देन पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे सकते हो। ऐसा समटाइम्स होता है कि पेशेंट सोते सोते यूरिन नहीं पास कर रहा है, उसको प्रॉपर जो नॉर्मली वॉशरूम में जाके यूरिन पास करने की जो पोजीशन है वो दोगे तो ही वो यूरिन पास कर पाएगा, तो उसको वैसे पोजीशन देनी है, उसमें पेशेंट को हेल्प करनी है। प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे आप पेशेंट को। पेरिनियम एरिया पे जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वहां पर वार्म वाटर आप पोर करोगे, बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं, इट शुड बी वार्म। सो उसकी वजह से वो मसल्स होते हैं जो रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स जैसे ही रिलैक्स होंगे वो थोड़े ओपन हो जाएंगे और पेशेंट को यूरिन पास हो जाएगा। फिर टैप वाटर रनिंग आवाज सुन के भी पेशेंट यूरिन पास कर सकता है। इफ ये सारी नॉन इन्वेजिव मेथड्स आपने यूज कर ली है बट स्टिल पेशेंट कैन नॉट वॉइड, देन you have to go for the invasive method, that is Catheterization. कैथेटराइजेशन। बट आप खुद से ही कर दोगे? आपने सारी मेथड्स यूज कर ली, पेशेंट फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप खुद से ही कर दोगे? No. No. नो, No. वी हैव टू नोटिफाई द सर्जन कि सारी यूज कर ली है फिर भी पेशेंट वॉइड नहीं कर पा रहा है, देन इफ सर्जन टेल्स यू टू कैथेटराइज देन यू कैन गो फॉर द कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट वी हैव सीन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मींस infrequent passage of stool। क्यों? ड्यू टू एनेस्थेसिया, डिक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज ओरल इनटेक, उसकी वजह से पेशेंट को स्टूल जो पैसेज हो रहा था वो इनफ्रीक्वेंट हो गया है। कब आप बोल सकते हो कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है? Within 48 hours. आफ्टर रेज्यूमिंग Solid Solid. diet. Solid diet. सर्जरी के बाद भी पेशेंट ने अभी नॉर्मल सॉलिड डाइट लेना स्टार्ट कर लिया है, फिर भी विद इन 48 आवर्स पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, देन वी कैन से कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। अब क्या करोगे? असेसमेंट फाइंडिंग्स कैसे होंगे? Encourage fluid intake, early ambulation. They are interventions. I'm talking about assessment finding. Vowel sound. कैसे होगे? Dull. Yes, diminished. Diminished or hypoactive vowel sounds, then absent vowel movement. Bowel movements. Yes, abdominal distension due to the stool accumulation. Anorexia, headache, nausea हो जाएगा पेशेंट को। Now interventions आप क्या कर सकते हो? पहले नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड। Fluid. Fluid intake of 30. फ्लूइड इनटेक आप इंक्रीज कर सकते हो, कितना? अप टू 3 liter. 3 लीटर पर डे, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सो वी कैन नॉट गिव। फिर आप क्या कर सकते हो? Ambulation. अर्ली एम्बुलेशन, उसमें भी अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो, अगर पेशेंट को बेड रेस्ट ही हो तो हम नहीं कर सकते, देन वी कैन High give fiber diet. Fiber foods. high fiber diet unless contraindicated, then Provide privacy. yes, provide privacy and adequate time for the passing of stool। और लास्ट में सब मेथड्स यूज करने के बाद भी नहीं हो रहा, then you can go for the pharmacological method, that is Laxatives. Then yes. laxatives or stool softeners। Any doubt in this? No, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Miss Sheetal, Yes, ma'am. yes, your score is still not visible। आपने टेस्ट दिया है फिर भी मुझे टेस्ट, आपका टेस्ट मुझे नहीं मिला है अभी तक। सबमिट हुआ था प्रॉपरली? हाँ मैडम, सबमिट था तू। बट आई एम नॉट गेटिंग योर स्कोर, मुझे नहीं मिला। मैंने ओवरनाइट आपके लिए लिंक ओपन ही रखा था बट स्टिल आई डू नॉट गेट योर स्कोर। ओके, नो वरीज, व्हेन जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा मैं ये टेस्ट की लिंक फिर से दे दूंगी, तब फिर से दे देना। તો મેડમ મને આની આન્સર કી સેન્ડ કરો ને તો પોતે વેરીફાઈ કરી શકું. પણ તમને યાદ છે તમે કયું આન્સર સિલેક્ટ કર્યું હતું, શું કર્યું હતું? હા હા એ તો મને ખબર પડી જશે મેડમ. ઓકે, સો आई शेयर यू द आंसर की। Okay. મને પણ શેર કરજો ને. ઓકે, જેમને પણ આન્સર કી જોઈએ છે પ્લીઝ મેસેજ મી તો મને ખબર પડે। ઓકે મેમ. Yeah. Okay, see you tomorrow at 9 a.m. Thank Thank you.